So you always the description or the capacity and the particulars of the incinerator on your ship are always given in the IOPP supplement. It will be given the capacity of the incinerator and whether it is capable of burning plastic or not. Correct? So for plastic burning, the incinerator has to be approved for burning plastic, otherwise plastic cannot be burned in the incinerator. So as far as sludge is concerned, we have as per Annex 1, we can dispose it off either to the shore facility, barge ko de dein reception facility, or we can do internal transfer between the tanks which are also given in IOPP certificate with capacity and the location between the frame numbers and also the port side mein starboard side mein, and the capacity of those tanks is also mentioned. So we can transfer, and third option is we can incinerate. That means we can burn this sludge into the incinerator, and therefore we have a daily tank also provided. So now this incinerator which is provided, as we see, first of all, what is your scope? है ना, हर टॉपिक में आपका स्कोप है, क्योंकि इट इज़ ए टॉपिक विच कैन बी वेरी वेरी बिग ऑल्सो, बट फॉर योर फेज 2 दे आर स्पेसिफाइड वर्किंग ऑफ द इंसिनेटर विद ब्लॉक डायग्राम. दैट मीन्स यू डोंट गो फॉर एनी आइसोमेट्रिक व्यू जैसा आपके बुक में दे रखा है, ब्लॉक डायग्राम से. एंड इन द पास्ट पेपर इफ यू विल सी दैट लेबल द कंपोनेंट्स, but label the components only with the block diagram. So don't ever go for some fancy diagrams over there, जैसे आपके बुक में कहे जाए ये, और even this one for example, this is an incinerator. इतना टैलेंट नहीं है सर, तो ऐसी कई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम दे रहा हूँ, उसमें लेबल भी हुआ हुआ है, और यू कैन ड्रॉ विद यूजिंग योर पुटा, पेंसिल पुटा से लेके आप बना सकते हो. हाँ जी, इसको बनाना है. इसको नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा. आप बनाएंगे, इसमें मैं मॉडिफाई कर दूँगा सर इसको. ठीक है, जैसा आपकी इच्छा. So, all right. So this is the incinerator is the equipment used on board to burn various types of waste generated on board. The waste generated on board during normal operation, that is important because as per all these requirements are given under Regulation 16 of MARPOL Annex 6. So it says that only operational waste can be burnt in the shipboard incinerator. ये नहीं कि आप if you are a carrier, suppose somebody has Operational domestic. operational, that is the sludge generated during the normal operation of the vessel. तो वो कहाँ से sludge generate हो रहा है? When you are running heavy oil purifier, for example, so the sludge, it is purifying the purifier, the oil, and therefore you have a small sludge tank, heavy oil purifier sludge tank. Similarly, we purify lube oil. That is also operational waste because you are purifying the lube oil on board. So those waste you can burn in the incinerator, operational waste. नहीं, liquid waste, solid waste. That means domestic भी तो करते हैं. हाँ जी? No, What is domestic? उसके बारे में नहीं था. Road is carry on generator. ऑपरेशन, आप वो भी तो ऑपरेशनल वेस्ट ही है ना. दैट इज ऑपरेशनल वेस्ट फॉर रनिंग ऑफ द वेसल यू आर डूइंग इट ना. आप क्या है, मान लीजिए आपके कॉटन वेस्ट है, रैग्स हैं, ये यू कैन बर्न. पेपर भी जला सकते हैं, कार्डबोर्ड, या इट इज आल्सो ऑपरेशनल वेस्ट. डू यू रिक्वायर दैट और यू डोंट रिक्वायर फॉर द रनिंग ऑफ द शिप? ऑपरेशनल वेस्ट मीन्स व्हाट यू आर जनरेटिंग बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वेसल. सब कुछ नहीं ऑपरेशन में होगा. सब कुछ नहीं आएगा. There are, that is why we have regulations. चलो पहले आपको वही क्लियर करूँ, ऑपरेशनल वेस्ट का. You have some let me show you first. टेस्ट तो करते हैं. हमारा टेस्ट तो है. इतनी बॉडी रखते हैं अंदर काम
मुझे सेट ऑफ होगा तो खुलते दिखने चाहिए शुरू हो गई है उसको चुवा के वाला गया जब तक वो खड़ा हुआ तब तक ढूंढ ही रहे हैं किधर आ जैसे आपको इतना उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी डाउट नहीं रहना चाहिए। एक तो टाइप वाला लेकिन डॉग लेवल रेगुलेशन से पेज नंबर 2 पढ़ना है एज पर योर क्वेश्चन वैसे 3 पेज हैं 2.5 पेज हैं 2.5 बोलोगे तो सब कुछ हो उसके बाद आप एक इज इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 Regulation 16 Marful Annex 6. This tells you what to be burned in incinerator, what not to be burned in incinerator. So Regulation 16 man, shipboard incineration is allowed only in a shipboard incinerator. That is the first requirement. That means you cannot take a drum in the poop deck and burn few things over there, whether it is garbage or paper or whatever, right? Only in an approved incinerator you can incinerate. Regulation number 2, 16.2. Incineration of the following substances is prohibited. These things you can't burn. Annex 1, 2, 3, cargo residues of the present Marpol Convention and related contaminated packing materials. For example, polychlorinated biphenyls. ये आप जो है cargo residues और this is dielectric. ये आप नहीं जला सकते। बट ऑलरेडी चला सकते पहले इसके अलावा आप सब कुछ चला सकते हो, ठीक है ना? This is what you cannot burn. Then garbage as defined in Annex 5. Annex 5 का garbage आपका of the present Marpol Convention containing more than traces of heavy metal. अगर उस garbage में heavy metal है, even traces, you cannot burn. If it is not there, you can burn. Clear? What is this heavy metal? 11 elements are specified here. These are toxic elements. अगर ये प्रेजेंट हैं तो आप नहीं जला सकते। Annex 5 के अंदर जो गार्बेज आपका आता है, you cannot burn if you have arsenic, cadmium, cobalt, chromium, copper, mercury, manganese, nickel, lead, tin and thallium, the emissions of which are regulated in waste incinerator. So now in combination of this you can say garbage as per Annex 5 containing more than traces of heavy metals. अगर heavy metals garbage में है तो आप नहीं जला सकते, अगर नहीं है तो जला सकते, ठीक है? Then refined petroleum products containing halogen compounds, अगर ये हैं ये भी आप नहीं जला सकते इंसिनेटर के अंदर। Sewage sludge and sludge oil, either of which is not generated on board the ship. अगर आपके शिप का स्लज नहीं है, यहाँ पे आता है ऑपरेशनल वेस्ट, क्योंकि मेरे को फ्यूल ऑयल जो है आई हैव टू प्यूरिफाई टू रन माय वेसल, सो दैट इज ऑपरेशनल वेस्ट, दैट स्लज। बट सपोज आई एम कैरिंग इट, समबडी एल्स हैज गिवन मी, यहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ A to B, आई कैनॉट कि यहाँ इसको जला के रास्ते में आई कैनॉट बर्न, ओनली योर शिप्स। दूसरे दे देंगे भी तो जला हैं? हाँ, दूसरा बोले यार ये थोड़ा सा ही तो है, 20 क्यूबिक दे रहा हूँ, रास्ते में जला के खत्म कर दूँ, आई कैनॉट डू इट। Only ships operational waste, that means those sludge should be only on the ship. Exhaust gas cleaning system residues cannot be burnt in incinerator. And PVC, which is plastic, unless incinerator is approved for this. अगर plastic के लिए approved है, then only I can burn plastic in the incinerator, otherwise not. Therefore, how do I know? You will check the IOPP certificate. There it is mentioned whether the incinerator is type approved for burning plastic or not. If it is type approved, burn plastic, no problem. If it is not type approved, you cannot burn. Okay.
Shipboard installation of stage sludge and sludge oil generated during normal operation of a ship is allowed in main and auxiliary power plant. Which is your main power plant, main engine, है ना? And auxiliary power plant. I can burn auxiliary. आपके पास boiler भी है. That is the auxiliary plant. So it is allowed. But in those cases shall not take place inside ports, harbors and estuaries. अगर ऐसा केस है, अगर आपको, तो आप उसको in port or in harbor or during maneuvering you cannot install. But we have to keep in mind, if this is applicable for your vessel, it will be indicated that boiler is approved for burning sludge, or mixing with the fuel and burning it main engine is approved for the vessel. Then only, otherwise no. Okay. Incinerator on a ship constructed after 4 January 2000 must meet the, this is for type approval, MEPC 7640. तो उसकी टाइप अप्रूवल है. टाइप अप्रूवल का मतलब इंसिनेटर मस्ट कंफर्म टू सर्टेन रेगुलेशंस. टाइप अप्रूवल एंड ऑपरेटिंग लिमिट्स फॉर शिपबोर्ड इंसिनेटर एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय आरओ ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो एज पर दिस MEPC 7640 it should be approved. Operating manual होना चाहिए and you must have evidence of having trained the ship staff. Correct? Because why? There have been cases where inappropriate or improper use of incinerator has resulted in uptake fires. There have been fires because of not following the regulation. So training is important here. Monitoring of the flue gas temperature is required. That means what is the temperature? Flue gas means combustion से जो gases बन रही हैं उसका temperature जो है that is required to be monitored. And therefore we have a requirement of pre-warming of the furnace. Incinerator जो है, inside the incinerator it is required to be pre-warmed to a temperature of 650 degrees centigrade. उससे पहले you cannot introduce sludge for burning. For continuous feed incinerator, continuous feed is where your feed is being introduced into the incinerator without human assistance. So that will happen if sludge is there. And batch loaded system is जब आप garbage जला रहे हो, आपने डोर खोला, garbage इधर डाला और जला दिया. So that is how they differentiate between continuous feed system and batch loaded system. If it is a batch loaded system, the furnace temperature, combustion chamber temperature should reach 600 in 5 minutes time. And PSC during inspection will also check. They check. They say okay, start the incinerator. 5 मिनट के अंदर फर्नेस के अंदर 600 डिग्री आ जाना चाहिए. अगर नहीं आया, then it means something wrong. Then, when you are burning sludge, the incinerator must stabilize between 850 and 1200 degrees centigrade. 850 and 1200 के बीच में stabilize होना चाहिए. You have a flow control valve also. You can increase, reduce the flow of the sludge. Sludge जो आप जला रहे हो. But you should be capable of doing. Incinerator should be so designed कि आपने adjust कर दिया तो 850 और 1200 के बीच में. स्लज अपने आप पर है. जैसे गार्बेज तो हम उसमें डालते हैं. हाँ नहीं, टैंक से आता है. आप स्लज को है उसको डेली टैंक बोलते हैं. डेली टैंक में ट्रांसफर करते हैं स्लज, उससे इंसिनेटर में जा रहा है. कनेक्शन रहता है. अभी दिखाऊंगा मैं. That is the diagram you have to. और नॉर्मल गार्बेज होता है ऑपरेशन होता है उसमें डालते हैं. हाँ, गार्बेज जला रहे हैं तो आप उसमें डोर है, ओपन द डोर, पुट द गार्बेज, क्लोज इट एंड देन फायर. उसके केस के लिए 5 मिनट में 600 डिग्री आना चाहिए. लेकिन अगर स्लज जला रहे हो देन 650 डिग्री जब तक नहीं आएगा आप स्लज में उसमें नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते. तो पहले डीजल वाला फर्स्ट वी विल ओनली फायर द इंसिनेटर ऑन डीजल ऑयल. कुछ नहीं जला रहे हैं, स्लज नहीं है. फायर किया डीजल ऑयल. डीजल ऑयल पे जलाया तो अंदर फर्नेस का टेंपरेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा. 650 आ गया तो उसका स्लज डालेंगे. अब हम स्लज उसका वाल्व डीजल का बंद कर देंगे, स्लज का खोल देंगे तो स्लज तो स्लज जलना शुरू हो जाएगा. लेकिन जब स्लज जल रहा है
इंसिनरेटर स्टेबलाइज हो गया। स्टेबलाइज हुआ था 850 और 1200 के बीच में टेम्परेचर है। मान लो 900 पे रुक गया, 900 पे चल रहा है, स्लज चल रहा है, आई एम हैप्पी। 950 पे चल रहा है, आई एम हैप्पी। 1200 तक चल रहा है, आई एम हैप्पी। लेकिन इसके बीच में इट हैज़ टू बी डिजाइन इन सच ए वे कि वो उतने के बीच में स्टेबल हो जाता है। हाँ, स्टेबल हो जाता है। ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा चला जाए या कम हो जाए। तो ये आपकी जो सिलेंडर डेली बेसिस पे रियल आते हैं? डेली बेसिस कोई ज़रूरी नहीं है। मे भी अगर है आपके पास तो डेली चला सकते हो, नहीं तो आफ्टर 2-3 डेज हो सकता है। इंसेट में एक्स्ट्रा कंजप्शन होता है फ्यूल का अलग से पावर बैंक चाहिए या कुछ नेशनल जनरेटर चाहिए, ये वो उतनी पावर्स हो जाती है। नहीं, क्यों चाहिए आपको? आपको तो डीजल ऑयल चाहिए सिर्फ इनिशियल फायरिंग के लिए, बस। तो डीजल ऑयल तो होता ही है ना जहाज में हमारे, हाँ, बस। और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। नेशनल जनरेटर तो नहीं चाहिए ना उसको पावर सोर्स के लिए? नहीं, नहीं देगा। कुछ नहीं चाहिए। नथिंग इज रिक्वायर्ड। वो आपका मेन बस बार से जो आपके जो शिप के जनरेटर हैं उससे पावर आ रही है, उसी से आप छोटे छोटे पंप ही तो हैं, उसमें कोई खास पावर थोड़ा चाहिए। फ्यूल पंप है एक। तो अगर गार्बेज बंद करना है तो एडिशनली डीजल बंद करने की जरूरत है। अगर स्विच करना है तो एडिशनली वो पहले वो करना पड़ेगा, डीजल बंद करना पड़ेगा। गार्बेज बंद करने के लिए तो पाइप चाहिए उसके लिए डीजल बंद अगर आप गार्बेज बंद कर रहे हो तो आप स्लज से गार्बेज नहीं बंद कर रहे। प्लीज रिमेंबर, स्लज इज ए सेपरेट पोल्यूटेंट, गार्बेज इज ए अनदर पोल्यूटेंट, है ना? तभी तो अलग अलग नेक्स्ट में आया हुआ है ना। जैसे गार्बेज बंद अब जब गार्बेज फ्लेम चाहिए ना, उसको फ्लेम करने के लिए डीजल है। डीजल से डीजल से जलाया हमने, वो जलता है। एक बार जल गया तो जलता गार्बेज है। डालना शुरू कर देंगे उसमें। और स्लज जलाने के लिए पहले डीजल से हमें टेम्परेचर लाना है। जब टेम्परेचर 650 आ गया, अब हम वाल्व चेंज कर देंगे, डीजल बंद कर देंगे, स्लज आना शुरू हो जाएगा। अब स्लज जलना शुरू हो स्विच का समझ आ गया। गार्बेज का गार्बेज के लिए आपने दरवाजा खोला, डायरेक्ट डाल दिया, इसके अंदर डाला, दरवाजा बंद कर दिया जला दिया। और फायर किया डीजल पे। वो डीजल पे कंटिन्यूसली फायर की जरूरत थोड़ी होती है, क्योंकि आपका जब वो एक बार पकड़ लिया आप उसने उसमें उसे डालते तो रहे। वो जलता जाएगा। और एक जितना आपने डालना है 1 वो में वो पूरा जल जाएगा, तभी आप उसको बंद करके निकालेंगे, ऐश कलेक्ट करेंगे। जो मैंने उसके अंदर डालते भी रहते हैं तो वो उसमें अगर नहीं, रनिंग में नहीं। रनिंग में नहीं डालते वो इसका डोर भी खुलेगा नहीं कभी, इसमें इंटरलॉक होता है। तो मतलब एक बार जितना जलाना जो उसकी कैपेसिटी है उतना आपने डाल दिया, वो जब पूरा जल जाएगा उसके बाद वी हैव टू कूल इट डाउन, क्योंकि उसमें 220 डिग्री से अगर ऊपर है टेम्परेचर तो वो खुलेगा ही नहीं दरवाजा आपका। जब वो ठंडा हो जाएगा अंदर उसको ऐश तब आपको फिर दोबारा हाँ, फिर दोबारा डालो, फिर दोबारा डालो, फिर दोबारा फायर डालो, करो उसका। दोबारा फायर, ऐसे। ओके, ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स, मैक्सिमम कंबस्शन टेम्परेचर फ्लू गैस 1200 डिग्रीज। तो ऑपरेटिंग रेंज क्या हो गई? 850 से 1200। प्री हीट टेम्परेचर 650। बैच लोडिंग के लिए कोई प्री हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्री हीट मतलब किसके लिए चाहिए? प्री हीट का मतलब होता है कि पहले फर्नेस जो है ना गर्म हो जाए। वो इसलिए क्योंकि हम जो स्लज जब जलाएंगे तो मान लो हमारा अंदर फर्नेस का टेम्परेचर है 300, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले पुराने टाइम में ये होता था, जब तक ये रेवोल्यूशन नहीं आई तो लोग अपना ऑन किया और अपना जला दिया स्लज। तो फ्यूल का तो हमें पता होती है स्पेसिफिकेशन कितने टेम्परेचर चाहिए। ये स्लज है, इट इज़ नॉट फ्यूल, इट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फ्यूल। और ऑलमोस्ट 80% 85% पानी है उसमें। तो अगर हम इसको लो टेम्परेचर पे चलाएंगे तो इट डज नॉट बर्न प्रॉपर्ली। अनबर्न फ्यूल जो है जाके चिपक जाता है जगह जगह अपटेक में, एंड देन इट रिजल्ट्स इन द अपटेक फायर। तो ये जो प्री हीट है गार्बेज के लिए तो उसके लिए चाहिए जो आपने बताया डीजल से पहले टेम्परेचर लेके आए। करेक्ट, फिर एब्सोल्युटली उसका सिलेंडर तो सिर्फ उसमें ही चाहिए प्री हीट। बिल्कुल। गार्बेज में कोई प्रीहीट नहीं चाहिए। नो प्रीहीट, यहाँ लिखा भी है देखिए, फॉर बैच लोडेड इंसिनरेटर देयर इज नो प्रीहीटिंग रिक्वायरमेंट। उसको आपको गरम करने की जरूरत नहीं है। सीधे सामान डालो ऊपर शिफ्ट अब जैसे तंदूर की रोटी बनाता है ना, तो पहले प्री वार्म करके रखता है ना तंदूर को। ये थोड़ा कि पहले रोटी चिपका दिया वो गर्म कर रहा है, उसमें जल जाएगी पहले या खराब नहीं या कच्ची रह जाएगी। वो पहले एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे जाता है, उसके बाद जितनी बड़ी रोटी बनाते रहोगे। ऐसे ही इसमें है, स्लज के केस में ना स्लज के केस में पहले हम प्री वार्म कर लेते हैं, इतना है अब स्लज डालेंगे तो जल जाएगा। गार्बेज में गार्बेज में जरूरत नहीं है। ये क्या मतलब जो गार्बेज हम डालते हैं तो ऑन किया हमने तो गार्बेज का वो ऑन हो जाता है।
वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आई विल शो यू कैसे चलता है वो। क्योंकि एक बार गार्बेज को आग लगी तो फिर वो जलता रहता है, एयर तो है ही है, कुछ नहीं करता। फिर डीजल की सप्लाई बंद हो जाएगी। भाई जैसे आपने लकड़ियाँ जलाई बस एक लकड़ी जले है ना, जब जल गए तो फिर अब आप बारबेक्यू करते हो, एक बार जब आग बन गई तो फिर तो कोयला डालते जाते हो ना, ऐसे ही है गार्बेज में। मैं भी 1305 का वेट मुंबई है। वो इसलिए है कि अगर ये ठंडा रहेगा आपका तो वो आपका जो आप जो गार्बेज डालते हो वो भी नहीं जलेगा ढंग से। तो आपको अनबर्न नीचे ऐश की जगह यू विल आल्सो हैव अनबर्न पेपर, कार्डबोर्ड, ये लकड़ी बाहर अलाउड नहीं है जलना। जनरल बात कर रहा हूँ, जैसे हम लोग उधर जलाते हैं ये चीजें बाहर, हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि हम उतना टेम्परेचर ले गया फिर नहीं चलाते हैं, आप वैसे ही निकाल दो, सूट निकल जाता है टेम्परेचर पे हो जाता है। वैसे तो जला लो, लेकिन जो उसके एमिशंस जाएंगे उससे तो फाइन हो जाएगा ना शिप पे। आपको एक होता है, एक देयर इज टू टर्म्स, वन इज कंप्लीट कंबस्शन, वन इज इनकम्प्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन का मतलब होता है इट इज हाइड्रोकार्बन, जब ये कार्बन उसका सारा CO2 में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोकार्बन चाहे वो लकड़ी है, चाहे पेपर है, चाहे आपका जूट है, ये ऑल हाइड्रोकार्बन। जब ये जलते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन, एयर चाहिए ना उसको, ऑक्सीजन से CO2 बनाता है, लेकिन अगर पूरा नहीं जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो कंप्लीट कंबस्शन के लिए हमें सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। अगर हम टेम्परेचर इतना नहीं देंगे तो वो जल तो जाएगा, जलेगा तो सही, लेकिन इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा। दैट मीन्स बाहर आपको धुआं आएगा, है ना, काला धुआं आएगा। तो काला धुआं आएगा तो आपको शिफ्ट पे फाइन हो जाएगा। अब आप देखते हो ना बॉयलर में भी जरा सा स्मोक आता है, करते हैं जिसमें स्मोक आ रही है, इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है। इसका मतलब एयर और फ्यूल का रेशियो बराबर नहीं है। उसके लिए जो है ये टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। अगर कंप्लीट कंबस्शन हो गया तो स्मोक कम निकलेगा। हाँ देखो, स्मोक के एक तो होती है क्वांटिटी, एक होती है कलर। अगर ब्लैक कलर आ रहा है इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, धुआं तो अभी भी आ रहा है। अगर कंप्लीट कंबस्शन होगा तो ब्लैक नहीं आएगा, धुआं तो अभी भी आएगा, स्मोक विल स्टिल कम, क्योंकि जो कोई चीज़ चल रही है तो उसका धुआं तो आएगा ही आएगा ना, लेकिन ब्लैक नहीं आएगा। इट विल बी स्लाइटली ग्रेइश कलर का, कलर है वाइटिश ग्रेइश के बीच में से आता है कलर। अगर ब्लैक आ रहा है इसका मतलब जल तो रहा है लेकिन कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट कंबस्शन है। अनबर्न फ्यूल एंड व्हाटएवर यू आर बर्निंग इज आल्सो गोइंग इन द उस टाइम में काला साफ हो जाता है। हाँ, उसका रीज़न यह है कि इनिशियली जब हम देते हैं एयर फ्यूल रेशियो करेक्ट नहीं है। इनिशियल जब फायर करते हैं तो हाँ, फायर करने के लिए ज़्यादा फ्यूल दिया जाता है पहले, तो उस टाइम में एयर कम है, लेकिन जैसे हो जाता है उसके बाद वो एडजस्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है एयर फ्यूल रेशियो, फिर वो स्मोक क्लियर आनी शुरू हो जाती है। वो अलाउड भी है, दैट इज अलाउड। ओके, अब हम आते हैं ये हमें आज खत्म करना है, वरना फिर आपका न्यूमेरिकल आगे बढ़ता जाएगा। Okay. Now look at the screen. This is the block diagram for the incinerator, right? और इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको कोई खास नहीं चाहिए टेक्नोलॉजी। आपने क्या करना है, एक ये क्यूब, इट इज अ चैम्बर, ऐसे इट इज अ क्यूब, है ना, इट इज अ चैम्बर विच आई एम मेकिंग इट विद डबल लाइन, दैट्स ऑल। एक ऐसे ये इट इज अ चैम्बर, डबल लाइन इज जस्ट टू इंडिकेट रिफ्रैक्टरी इनसाइड, है ना, बिकॉज हीट ऑफ कंबस्शन शुड नॉट गो आउट, दैट्स ऑल, अदरवाइज इट इज जस्ट ए क्यूब। यहाँ पे रेक्टेंगल है, टू डायमेंशन में इट इज ओनली रेक्टेंगल, अदरवाइज इट इज ए कंपार्टमेंट। अब इसमें लेट अस सी फ्रॉम एग्जॉस्ट साइड, क्योंकि इसको भी बनाना इजी है, बिकॉज ओवर हियर आई एम जस्ट ड्राइंग टू लाइंस एंड शोइंग द एग्जॉस्ट। दिस इज द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन। फ्यूल जब स्लज जलेगा तो जो उसकी गैसेज हैं यहाँ से जाएंगी, यहाँ से जब जा रही हैं इसके बाद एक और कंपार्टमेंट है ये, दिस इज कॉल्ड ब्लोअर रूम।
इसमें ये ब्लोअर दिखा रखा है। अब ये ब्लोअर दिखाने में ये मोटर है, ये ड्राइव है इसकी, और ये ब्लोअर के पंखे की पंखुड़ियाँ हैं, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये। सो दिस ब्लोअर, दिस यू कैन ड्रॉ एज पर योर कन्वीनियंस, अदरवाइज आप बॉक्स बना के अंदर ब्लोअर कर दो तो भी काफ़ी है ना। अदरवाइज दिस टूल दिस शोज दैट इट इज़ ए ब्लोअर, और ये इसकी शाफ्ट है, ये मोटर है, इससे ड्राइव इसको आ रही है, दिस वन इज रोटेटिंग लाइक दिस। दिस ब्लोअर इज रिक्वायर्ड टू हेल्प रिमूवल ऑफ gases from the insulator. वो क्यों? Because there is a requirement that the pressure inside the incinerator should be below atmosphere. Correct?